आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का ये पहला सेमीफाइनल बड़ौदा और मुंबई के बीच। तो टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है श्रेयस अय्यर ने और एक नजर डालते हैं बड़ौदा के ऊपर। अभिमन्यु सिंह, शाश्वत, हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या, शिवालिक, पनिया, सामने है मुंबई। It's a star-studded team. You talk about Rahane, you talk about Prithvi Shaw, Surya Kumar Yadav, Shivam Dubey, Shetty, upcoming star. सलामी जोड़ी बड़ौदा के लिए। स्ट्राइक पे रहेंगे शाश्वत रावत। इनका साथ देने बड़ौदा के लिए उतरे हैं अभिमन्यु सिंह राजपूत। मोहित अवस्थी के हाथ में है गेंद। Shashwat Rawat is off the mark. बढ़िया शॉट है ये, यही मायने रखता है। ये लीजिए, यही शाश्वत रावत के बारे में अभी यहां बात भी हो रही है। ये बहुत ज्यादा ऊपर गई है, आवाज अलग किस्म की आई थी। ओहो, कौन है भाई, बता दो कौन है ये खिलाड़ी। क्या कमाल का कैच पकड़ लिया अथर्व, मजा आ गया। अथर्व थे वहां पे और ये कैच जो है ना, एक कमाल का ये कैच पकड़ा गया है। 9 रन बना के अभिमन्यु आउट हुए। New batter is Krunal Pandya. Up in the air, top edge, and it went for 4. Oh, ho, 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 ho. What a shot! ऐसी कुछ बल्लेबाजी देखने के लिए। जी हाँ, ये मैं कह रहा था आपको। Oh, that's a good shot. That is a fabulous shot from Shashwat. Oh, that's played through the offside. That will be 4. Don't bother running for that. Hit beautifully. Swept for 4. And there, first ball, he picks up the wicket of Krunal Pandya. It was a wide delivery, went for an expansive drive, got an outside edge, and Tamore made no mistake. Disappointed Krunal Pandya. बढ़िया पारी खेली, 30 रन बनाए 24 गेंदों पर, 73 पर 2 बड़ौदा। Bhanu Pandya comes in. हवा में खराब शॉट खेला यहाँ पर पनिया ने और एक आसान सा कैच होगा। श्रेयस अय्यर वहां पर मौजूद, अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश। जो बात हम कर रहे थे गेंदबाज अथर्वा की, कि तेज गति से डालते हैं, ज्यादा टर्न होता नहीं, और यहाँ पर गलती कर बैठे बानू पनिया। 78 for 3 Baroda. शिवालिक शर्मा आए हैं बल्लेबाजी के लिए। And cleaned him up. Went for a reverse sweep. Missed the line completely, Shashwat Rawat. And was cleaned up. This is what pressure does to you. This is what pressure is doing to Baroda batters. Shashwat Rawat out for 33. 80 for 4 Baroda. हार्दिक पांड्या, आंकड़ों की क्या बात करें। हार्दिक पांड्या, ये स्ट्रेंथ है इनकी। Oh, very soft dismissal. Very soft dismissal there. Wanted to play on the offside. Change of bowling once again, working in favor of Mumbai. 5 बनाए हार्दिक पांड्या ने, 89, 5 विकेट के नुकसान पर बड़ौदा। Vishnu Solanki, the strike rate 128. Oh, first he wanted to go for a catch and then he wanted to put some part of his body behind that ball to stop the boundary. Excellent catch. Outstanding. This boy is making his mark in this strong Mumbai side. Suryansh is shining like a sun. विष्णु सोलंकी 6 रन बनाकर आउट, 103 पर 6 बड़ौदा। Atit Seth. शॉट खेल दिया है, ओह कमाल का शॉट खेला। Yeah, this should get to the fence. Quality shot. That's gone to the fence.
That's 4. Don't bother running for that. Top class. Absolutely top class from Shivalik. Oh, it's gone for 6. Second 6. Oh, this could be out. And it is. Ajinkya Rahane doesn't drop too many. Safe as houses. Atit Sheth. He's got to walk back, but he was trying to do the right thing, the right intention. अतीत शेठ ने 22 रन बनाए 14 गेंदों पे, तो नया बल्लेबाज है ऑन स्ट्राइक. Is that gone? Yes, that's gone. Third 6 off the over. 19 coming off it. Baroda have got to 158. 30 गेंदे 55 रन बने हैं आखिरी 5 ओवरों में, और उसी के चलते बरोडा 158 पे 7 20 ओवर के बाद. And when you talk about the target, Mumbai needs 159 in 20 overs. It's a required rate of 7.95. Prithvi Shaw. अजिंक्य रहाणे. गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे हार्दिक पांड्या. That's what I'm talking about. He's a dasher. He's a go-getter. Nicely played. First ball. Opens with the count with a boundary. लाजवाब. और अब देखिए जरा, टाइमिंग देखिए, प्लेसमेंट देखिए. Look at that. Oh, beautifully played. And that, it was in his half and smashed over covers for 4. Oh, look at that. Up in the air, up in the air. And wicket number 1 goes. That is what we have been saying. Either you get him out or he'll knock you out. They have got him out. Prithvi Shaw out for 8. Mumbai has lost the first wicket. 30 पे पहला झटका लगा मुंबई को. New batter is Shreyas Iyer. That's what I'm saying. They are intimidated by Ajinkya. अब बताइए गेंदबाज करे तो क्या करे. Oh, that's a good shot from Shreyas. That'll get to the fence. Oh, was that a chance? Was that a chance? That's going to get to the fence. रन जाएंगे, लेकिन यहां परेशानी कुणाल पांड्या के लिए. लेकिन ये गया लॉन्ग ऑन के ऊपर से. Oh, look at that. They're using the pace of the ball, width of the ball. एक और चौका. Oh, look at that. Look at that. Again, he made the same mistake. क्या बात है. अगर आपने शॉट ना भी देखी और सिर्फ आवाज सुनी हो गेंद और बल्ले के संपर्क की, तो आपको पता चल जाएगा ये गेंद कहां जा रही है. और इस छक्के के साथ एक और बेहतरीन अर्धशतक अजिंक्य रहाणे के नाम. Oh, another one. Another 6. They're dealing in 6s. Look at that from the top there. Oh, up in the air, up in the air. Unlike Ajinkya Rahane. Look at that. They've been sent on a leather hunt. समस्या में आ गई बड़ौदा की बल्लेबाजी. हवा में कोई गलती वहां नहीं की. बानू वहां पर मौजूद थे, कोई गलती उन्होंने नहीं की. शॉट खेलने की कोशिश. श्रेयस अय्यर की तालमेल बैटर बॉल के बीच में वैसा नहीं जैसा वो चाहते थे. Mumbai 118 for 2. 600s in his T20 career for Suryakumar Yadav. रन जाएंगे यहां पर. रन जाएंगे वो विचार. एक बार शॉट डिलीवरी. कोई फील्डर वहां मौजूद नहीं. रन जाएंगे अजिंक्य रहाणे के बल्ले से. Oh, he struck that well again. Another 6 for Ajinkya Rahane. That's magnificent. That's probably the biggest of the lot. There he goes, Ajinkya Rahane.
One bounce over the ropes. He's on 94 now. Has he found the gap? Yes, he has. Up in the air. Oh my God. Wicketkeeper is getting under it. Oh, Rahane would be very, very unhappy with that shot that he's played. 99 के फेर में फंस गए Rahane. What a knock it's been. But one shot of that magical figure and Rahane has to depart. लाजवाब पारी अजिंक्य रहाणे ने खेली 98 रनों की सिर्फ 56 गेंदों में। Shivam Dube. And now he falls. Back to back 2 wickets. What's happening here? Just 1 run required to win this game and Mumbai have lost 2 wickets. सूर्या 1 रन बनाकर आउट हुए। 158 पर 4 मुंबई। Suryansh Shedge is on strike now. And there it is. With that shot, Mumbai win this game. And with this, they march into the final of the IDFC First Bank Syed Mushtaq Ali Trophy. They deserve to be a finalist here, the way they have performed in the past few days. And that's been the story of this game. 158 in the 20 overs. Baroda lost 7 wickets in the process, and in reply, a very, very strong reply indeed by Mumbai. 17.2 overs, that's all it took them to get past 158 at the end. They won. दहेज की बेड़ियां, एक झूठे केस की मार्मिक कहानी। भारत में दहेज प्रथा का दंश सदियों से समाज को परेशान करता आया है। हालांकि इस कुप्रथा के खिलाफ कानून बनाए गए हैं, लेकिन कभी कभी इन कानूनों का दुरुपयोग भी होता है। ऐसी ही एक कहानी है 28 वर्षीय रोहित की, जो झूठे दहेज के केस में फंसकर अपने जीवन का अंत करने को मजबूर हो गया। रोहित एक छोटे से कस्बे का होनहार लड़का था। उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था। अपने परिवार की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने वाला रोहित अपने माता पिता का गर्व था। वह सादगी और ईमानदारी से भरा हुआ इंसान था। रोहित की शादी एक मध्यवर्गीय परिवार की लड़की साक्षी से तय हुई। दोनों परिवारों में खुशी का माहौल था। शादी धूमधाम से हुई, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यह खुशी जल्द ही एक दर्दनाक कहानी में बदल जाएगी। शादी के शुरुआती कुछ महीने तो समान बीते। रोहित और साक्षी एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जल्द ही साक्षी और उसके परिवार की अपेक्षाएं बढ़ने लगी। साक्षी के माता पिता ने अप्रत्यक्ष रूप से महंगे गहने और पैसे की मांग शुरू कर दी। रोहित ने इसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन बात धीरे धीरे बिगड़ने लगी। कुछ ही महीनों बाद साक्षी ने रोहित और उसके परिवार पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाकर पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। उसने कहा कि रोहित और उसके परिवार वाले दहेज के लिए उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। मामला 498A के तहत दर्ज किया गया। रोहित के लिए यह आरोप किसी बिजली के झटके से कम नहीं था। उसका परिवार, जो हमेशा सादगी में यकीन रखता था, अचानक समाज के कटघरे में खड़ा हो गया। पड़ोसी, रिश्तेदार और दोस्त सबकी नज़रें सवालों से भरी हुई थी। रोहित ने अपनी बेगुनाही साबित करने की हर संभव कोशिश की। उसने पुलिस और कोर्ट में खुद को निर्दोष बताया, लेकिन कानून की धीमी प्रक्रिया और झूठे गवाहों के चलते उसका पक्ष कमज़ोर पड़ता गया। उसे बार बार थाने और कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े। इस दौरान रोहित का मानसिक तनाव बढ़ता गया। उसकी नौकरी चली गई और उसके परिवार पर भी आर्थिक संकट आ गया। समाज में बदनामी ने उसकी मां को बीमार कर दिया और पिता असहाय महसूस करने लगे। रोहित ने कई महीनों तक यह सब सहा, लेकिन धीरे धीरे उसने उम्मीदों को खो दिया। उससे लगने लगा कि अब उसके जीवन में कुछ नहीं बचा। एक दिन उसने अपनी माँ के आंसुओं और अपने पिता की लाचारी को देखकर एक फैसला किया। उसने एक चिट्ठी लिखी, मुझे माफ़ करना माँ पापा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी सारी आपकी ज़िंदगी को इतना दर्द देगी। मैं बेगुनाह हूँ, लेकिन यह दुनिया मुझे सुनने को तैयार नहीं। मैंने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन अब मैं थक गया हूँ। मेरे जाने के बाद मुझे दोष मत देना। मेरा सिर्फ एक ही कसूर है कि मैंने इस समाज में ईमानदारी से जीने की कोशिश की। रोहित ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसकी मौत ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया। पुलिस ने उसकी चिट्ठी को सबूत के तौर पर लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रोहित की मौत ने झूठे दहेज मामलों के एक और शिकार को उजागर किया। कानून
जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया था उसका गलत इस्तेमाल होने पर एक निर्दोष व्यक्ति की जान ले ली। रोहित की कहानी समाज को एक गहरा संदेश देती है। दहेज प्रथा के खिलाफ कानून जरूरी है, लेकिन उसका दुरुपयोग रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है। झूठे मामलों से न केवल एक निर्दोष परिवार तबाह होता है, बल्कि इससे असली पीड़ितों की लड़ाई भी कमजोर पड़ती है। इस घटना के बाद रोहित के गांव में कई लोगों ने झूठे मामलों के खिलाफ आवाज़ उठाई। उन्होंने प्रशासन से अपील की कि ऐसे मामलों की गहन जांच होनी चाहिए और झूठे आरोप लगाने वालों को भी सजा मिले। यह कहानी सिर्फ रोहित की नहीं, यह उन हजारों निर्दोष पुरुषों की कहानी है जो झूठे दहेज मामलों में फंसकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं। हमें ऐसे कानूनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए आगे आना होगा, ताकि कोई और रोहित अपनी ज़िंदगी से हाथ ना धो बैठे। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें वीडियो को।